ठीक दे होगा हाँ बिल्कुल डॉक्टर सर क्लास ज्वाइन को सर को लगा चिरा के मैं पूछूं Around the da in the screen share ko zakir sir لا ما زما زخم بس busy ده presentation هو open code desktop में desktop ده ده Pagalitan ko ya kamu magani مرواني इनको जब मैं वो करूँ ना शासन ده beautiful हेलो अच्छा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है शासन आवाज तरह से ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम आज टुडे इज आवर फर्स्ट डे of this Zoom class and today's lecture is organizational behavior and attitudes and job satisfaction. Okay, in this chapter, Imran bhai, the agaba singa ke agar koi koi na the question answer is ke ya notes agaba singa koi thi aba ani koi na da na da bus na da so zoom se da ya da adina das اول به دا سټاپ شیر کوم نو بیا به دې ما ته وښکاري آی سي او چې کله زه دا کوم نو بیا به شیر سکرین داسې او ګریټ یار تھینک یو हेलो आवाज आ रही है अच्छा जी in today's lecture we will cover these topics attitudes does behavior always follow from attitudes and what are the major job attitudes job satisfaction what causes job satisfaction and the impact of satisfied and dissatisfied employees. In other words, this lecture is all about the attitude and satisfaction and about behavior, etc. So we will discuss all these things one by one. Okay, attitudes. What is attitude? Attitude is basically it is or these are evaluative statements or judgments concerning objectives, people, or events. You see, the evaluative statements or judgments, your judgments or some kind of evaluation you develop about some object, people, individual, scenario, and event. So this is called attitude, and it's
all due to your thinking and your mental state. Okay, there are three components of an attitude. Number one, the opinion or belief segment of an attitude, and it is cognitive. The first one is cognitive, and the second is affective, and the third is behavioral. Okay, cognitive is the opinion or belief segment of an attitude. As you see, cognitive, it is basically, it deals with your mind, your cognition. We see cognition, urdu mein se kehte hain gyan. Okay, and it is your belief, your opinion about an attitude. Okay, and the second is affective, and it denotes or uh, it implies the meaning of emotions. Affective deals with emotions. So the emotional or feeling segment of an attitude, it is affective. Okay, that it means that whenever you feel uh, and through your emotions you develop some attitude, so it is effective part of this attitude. Like मतलब आप किसी चीज से खुश होते हैं, खफा होते हैं, गुस्सा होते हैं, मतलब आपके इमोशंस, आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स जो भी हैं वो उससे इफेक्ट होते हैं. तो उस इफेक्शन के बेस पर आपका जो एटीट्यूड होता है, आपका कोई बिलीफ, परसेप्शन, तो ये क्या होगा? इट विल बी द इफेक्टिव एलिमेंट ऑफ दिस एटीट्यूड. ओके, द थर्ड वन, बिहेवियरल. बिहेवियरल क्या होता है? एन इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स समवन और समथिंग. एटीट्यूड का ये पोर्शन, what it tells, yeah, what it means कि जी आप का जो इंटेंशन होता है कि आप क्या बिहेव करना चाहते हो, व्हाट एक्शन, और मतलब किस तरीके से आप एक खास सर्टेन बिहेवियर शो करते हो किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में. तो बिहेवियरल जो एटीट्यूड है, इट्स डील विद योर बिहेवियर. सो there are three main components of an attitude. Cognitive, which deals with your mind, your thinking, your belief. Second is affective, and it deals with your emotions. And third is behavioral. It deals with your intention to behave about something. So attitude इन तीन चीजों से मिलके बनता है. Okay, there is a question कि does behavior always follow from attitudes? मतलब ये है कि पहले एटीट्यूड होगा, उसके बाद बिहेवियर होगा. तो लियोन फेस्टिंगर, ही इज अ, आप इसे बिहेवियरल एक्सपर्ट कह सकते हो, सोशियोलॉजिस्ट था, एक साइकोलॉजिस्ट था इवन. ही सेज दैट नो, द रिवर्स इज समटाइम्स ट्रू. यानी कि जरूरी नहीं है कि जी एटीट्यूड के बाद, एटीट्यूड से ही बिहेवियर डेवलप हो, बल्कि बाद औकात ये रिवर्स भी हो सकता है, बिहेवियर से भी एटीट्यूड बन सकता है. डिपेंड्स. अब वो कैसे? आगे एक चीज है कॉग्निटिव डेसोनेंस. देखिए जी, मार्केटिंग में भी आप पढ़ते हो कॉग्निटिव, ये डेसोनेंस का टर्म मार्केटिंग में भी यूज होता है. दिस ऑल बेसिकली डेवलप्स डिराइव फ्रॉम साइकोलॉजी. अब इसमें है कॉग्निटिव डेसोनेंस. दो वर्ड्स हैं बेसिकली. कॉग्निटिव, कॉग्निशन आपके माइंड से, और दूसरा है डेसोनेंस. डेसोनेंस मींस व्हेनेवर यू your expectations do not match the reality. तो आप एक माइंड स्टेट में चले जाते हो, उसे कहते हैं डेसोनेंस. आप डिससेटिस्फैक्शन कह सकते हो मेंटली. एनीवे, कॉग्निटिव डेसोनेंस, एनी इनकम्पैटिबिलिटी between two or more attitudes or between behavior and attitudes. यानी कि दो इंसानों के बीच में एटीट्यूड्स या बिहेवियर एटीट्यूड, इसका डिफरेंस हो. इन डिफरेंस से भी ज्यादा मैं कहूंगा इनकम्पैटिबिलिटी. जिस तरह मैं कहता हूं ना कि दो लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. नाउ इंट्रोवर्ट हैज डिफरेंट माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशन, हैबिट्स, उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स टोटली डिफरेंट होते हैं. लेकिन इसके मुकाबले में अगर एक्सट्रोवर्ट की मैं बात करूं, वो शॉर्ट टेम्पर होगा,
وہ جلد باز ہوگا, وہ غصناک ہوگا, وہ فن لونگ ہوگا, ایڈونچرسٹ ہوگا, موڈی ہوگا, ہاں اس کے ایموشنز ڈیپ نہیں ہوں گے. لیکن اس کے مقابلے میں انٹروورٹ کے ایموشنز وہ ڈیپ ہوتے ہیں. آر یو گیٹنگ می؟ سو ان دونوں کی کمپیٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, انکمپیٹیبل ہوتے ہیں وہ دونوں. ٹھیک ہے, اور کس چیز کی انکمپیٹیبلٹی؟ ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر. اوکے, انڈیویجولس سیک ٹو, اچھا جب یہ سچویشن ہو when there is two incompatibility between two persons on the basis of their attitudes and behavior, so cognitive dissonance created. Are you getting me? Okay, individuals seek to reduce this uncomfortable gap or dissonance to reach stability and consistency. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. واٹ از دس انڈرسٹینڈنگ بیسیکلی؟ دس از ریڈکشن اور lowering or lesser the uncomfortable gap or dissonance so that to reach stability and consistency. Okay, consistency is achieved by changing the attitudes, modifying the behaviors, or through rationalization. جب میرے اور فار ایگزامپل شاہ حسن اور شاہ حسن اور حکیم باسط, ہاں یہ دو نام مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد آ رہے ہیں. حکیم باسط اور شاہ حسن کی دو لوگوں کی پرسنالٹیز ہیں. حکیم باسط از انٹروورٹ, شاہ حسن از ایکسٹروورٹ. اب یہ دونوں کے مزاج, ان کی پرسنالٹی, ان کا بیہیویئر تو چینج ہوگا, لیکن کیا ہوگا, کس طریقے سے یہ سینرجی, ٹیم ورک, آرگنائزیشنل کے ٹاسک, آرگنائزیشنز کا گول مل کے کیسے اچیو کریں گے جب یہ کمپرومائز کر لیں. اور یہ کمپرومائز کیسے, کمپرومائز سے بھی بیٹر ورڈ ہوگا when they both understand each other attitudes. جب ہم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, تو کیا ہوگا, اور وہ سمجھنا ایک لاجک, ایک میچیورٹی, تو یہ کیا ہوتی ہے, ریشنلائزیشن کے تھرو. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے وہ کنسسٹنسی آ جائے گی. اچھا دیکھیں, ڈیزائر ٹو ریڈیوس ڈیزوننس. جب میں کہتا ہوں کہ ڈیزوننس کم ہو, now this desire solely depends on these three things. Number one, importance of elements that create that dissonance. اس پہ ذرا سمجھنا کہ کن چیزوں سے یہ ڈیزوننس کریٹ ہوتا ہے, اس کی اہمیت کو سمجھنا. جب آپ سمجھو گے تو تبھی آپ اس پوزیشن میں ہوگے کہ آپ اس کو کم کر سکو. ڈگری آف انڈیویجول انفلوئنس, یعنی کہ آپ کتنا موٹیویٹ ہو, آپ کا کتنا انفلوئنس ہے, آپ کا کتنا امپیکٹ ہے کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں, willingness, motivation to reduce that dissonance. اگر آپ نہیں چاہتے, if you are not motivated, if you are not eager, if you are not a kind of you don't want to be influence this to reduce that dissonance, تو کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکتی. آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, میاں بیوی, مطلب یہ کہ 20 سال بعد ڈائیورس ہو جاتی ہے. اس طرح آرگنائزیشنز میں ایک بندہ 20 سال, 10 سال, 5 سال ایک ٹائم گزارنے کے بعد وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا. تو اب یہ چیزیں چونکہ انڈیویجولس کی بات ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوں, کیونکہ بعض اوقات ون پرسن یا سیکنڈ پارٹی یا دونوں نہیں چاہتے کہ یہ ڈیزوننس ریڈیوس ہو. تو اچھے ریشنل امپلائیز, ریشنل انڈیویجولس, دے مسٹ یا دے شوڈ کیا ہو, ڈیولپ reduce this dissonance. Okay, third thing is rewards involved in dissonance. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, ریوارڈس. اگر ڈیزوننس ہو اور اس ڈیزوننس یا ڈسسیٹسفیکشن, یا مطلب یہ کہ میری ڈیزوننس کو بھی ذرا میں آپ کو جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ جی ڈیزوننس بیسیکلی کیا ہوتا ہے, جب آپ کی ایکسپیکٹیشن اور ریالٹی نہ میٹ کرے. آر یو گیٹنگ می؟ جب ایکسپیکٹیشن اور ریالٹی میٹ نہ ہو تو ہم ڈیزوننس کا شکار ہو جاتے ہیں. جب میں کہتا ہوں فار ایگزامپل کہ جی ایک پروڈکٹ ہے لیٹ سپوز, اور وہ مارکیٹر اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے کہ جی یہ بڑا زبردست قسم کا ڈٹرجنٹ ہے, اور یہ مطلب ضدی داغ بھی پاس کر لے گا, صاف کر لے گا, اور مطلب یہ کہ اس کی کافی کوالٹیز ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں نا, آپ کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی ہے, ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ اس کو خریدتے ہو تو وہ مطلب ہاتھ بھی خراب کر دیتا ہے,
कपड़े भी उस तरह से नहीं धो सकता। तो अब ये क्या होता है, ये एक डेजोनेंस, आप एक मतलब सेटिस्फेक्शन के बजाय आप डेजोनेंस का शिकार हो जाते हो। आर यू गेट, इट इज अ काइंड ऑफ अपोजिट टू क्या कहते हैं उसका, सेटिस्फेक्शन। दूसरी चीज, अगर मैं बिहेवियर की बात करूं, तो मैं अगर कहूं कि जी फला बंदा मतलब ये कि मेरे साथ मैच करेगा, कंपेटेबल होगा, लेकिन वो कंपेटेबल नहीं हो सकता या नहीं होता, तो अब ये क्या होता है, ये तो एक डेजोनेंस हो जाती है। लेकिन बाज औकात मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग में, या मतलब ये है कि अगर मैं उसको अंडरस्टैंड करूं मुझे कोई फायदा होगा, हाँ, और या मतलब ये है कि मुझे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो ये रिवार्ड्स भी बड़ा अहम होता है कि जी अगर मैं इस रिवार्ड को समझूं कि जी अगर मैं इससे अच्छे रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग या कंसिस्टेंसी या लेवल पे आ जाऊं, तो शायद मुझे एक अच्छा कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यस, अच्छा, अभी एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी आवाज इन तक पहुंची है, नहीं पहुंची ना? हाँ, इन तक पहुंची है। मैं भी जरा आपका क्वेश्चन रिपीट कर दूं। अभी चूंकि शाह हसन मेरे सामने ही बैठा है फिजिकली, तो इसने एक क्वेश्चन अभी रेस किया है। आपको भी मैं फिर टाइम दूंगा कि आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन रेस। इनका क्वेश्चन मैं दोहरा देता हूँ। इनका क्वेश्चन ये है कि जी कॉग्निटिव तो ठीक है सर, माइंड से रिलेटेड है, डेजोनेंस क्या है प्लेन वर्ड्स में? मैंने लेक्चर की स्टार्ट में कहा कि डेजोनेंस इज द डिफरेंस, या मैं कहूंगा कंट्रास्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। जो डिफरेंस होता है ना, मैं कहता हूँ जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि जी एक्सपेक्टेशन, आप किसी बंदे से आपकी एक्सपेक्टेशन हो, और वो एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये बड़ा अच्छा होगा, रियलिटी ये है कि वो अच्छा नहीं है। तो अब ये क्या है, ये एक डेजोनेंस का शिकार। आप इसे इन प्लेन वर्ड्स, आसान अल्फाज में, अल्दो ये नहीं है लेकिन आसान अल्फाज में आपसे कहते हैं अपोजिट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। आर यू गेटिंग मी? बट दिस dissatisfaction is due to, या involve your mental state. आर यू गेटिंग मी? माइंड से रिलेटेड, मेंटली आप, और आप देख रहे हैं कि मैं अगर एटीट्यूड्स की एग्जांपल आपको मैं कहूँ, तो एटीट्यूड्स में अब ये तीन चीजें आप देख रहे हैं ना, कॉग्निटिव, हाँ, और इस तरह बिहेवियर, और ये अफेक्शन। अच्छा जी, मूव टू अदर स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, व्हाट आर द मेजर जॉब एटीट्यूड्स? अब देखें, जिस तरह मैंने एटीट्यूड्स को क्लियर कर दिया ना आपके सामने, कि एटीट्यूड्स इज कंप्राइज्ड ऑफ, it is your belief or opinion basically regarding something, someone, some event. तो अब ये एटीट्यूड जो है, ये मुख्तलिफ तरीकों से हम देखते हैं, ये डेवलप होता है। और ऑर्गेनाइजेशंस में अगर मैं देखूं, तो ये क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये अब एटीट्यूड है। जॉब इन्वॉल्वमेंट, दिस इज एन एटीट्यूड। साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, दिस इज एन एटीट्यूड बेसिकली। आर यू गेटिंग मी? तो जॉब सेटिस्फैक्शन अब ये क्या है, ए पॉजिटिव फीलिंग अबाउट द जॉब resulting from an evaluation of its characteristics. Job involvement, degree of psychological identification with the job where perceived performance is important to self-worth. देखिए, एक साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन है, आप एक जॉब के साथ आपकी एक शनाख्त बन जाती है, एक पहचान, लेकिन साइकोलॉजिकली, और वो अच्छा, और वो परसीव परफॉर्मेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है टू सेल्फ वर्थ। मतलब अगर आप ये परफॉर्मेंस, एक साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन तो आपको दे देती है जॉब के साथ, और इसमें आप क्या इंपॉर्टेंट है होता है आपका, कि मेरी मतलब मैं परसीव परफॉर्मेंस जो है, और मेरी जो सेल्फ वर्थ है, ये मेरे लिए जरूरी है। मतलब मेरी मेरी जो अहमियत बनती है मेरी परफॉर्मेंस, परसीव परफॉर्मेंस से, तो ये क्या है, ये आपकी जॉब इन्वॉल्वमेंट। आप देखें ना, आप एक जॉब में कितना इन्वॉल्व रहते हो, कितना टाइम देते हो, हाँ, कितना इंटरेस्ट आप इसे कह सकते हो, और ये क्यों करते हो। देखिए, एक चीज है, ये इंटरेस्ट आप क्यों लेते हो। एक होता है काज, और एक होता है इफेक्ट। इंटरेस्ट तो मैं कह सकता हूँ ना कि जी मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ,
لیکن یہ میں کیوں لے رہا ہوں, یہ ڈیو ٹو یور جاب انوالومنٹ. اور ڈیفینیٹلی گڈ انٹرسٹ بھی ہوگا, فن بھی اس میں ہوگا, دل بھی آپ کا چاہتا ہوگا, لیکن اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس کام میں انوالو ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, اور یہ اسی لیے کہ آپ اسے کہتے ہو کہ جی یہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ورتھلی سائیکولوجیکل امپاورمنٹ. جابر اس میں یار ایک چیز آ گیا, زوم لیوٹ اس طرح 40 منٹس کوئی بات آ گئی, میں نے اس پہ کلک کر دیا, تو میرا خیال بریک ہوگا کچھ اس طرح کہ ان کے اتنا ٹائم بعد. ابھی تو آئن کروں. اچھا اس کو میں مائک سب کا آن کروں. آن ہو گیا. ہاں. السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام. ناصر آپ کا کوشچن ہے. صاحبزادہ یاسین سر. اوکے اوکے اوکے, ناصر نے میرا خیال ہے ہاتھ ریز کیا. اچھا جی 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 سر. سر یہ آپ نے ڈیزوننس کی بات کی نا سر, ہاں کہ ڈیزوننس از بیسیکلی دا ڈفرنس بٹوین دا ایٹیٹیوڈ اینڈ دیز ٹائپ آف تھنگس. سر تو پھر بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ میں کیا ڈفرنس ہے سر؟ اچھا اس کی طرف ہم آتے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ڈیزوننس جو ہے نا, اس میں تو آپ سمجھ گئے نا کہ یہ ایکسپیکٹیشن اور ریالٹی کا میچ نہیں ہے. آر یو جی گیٹنگ سر. می؟ جی ایٹیچیوڈ سر. جو ہے, اگر آپ مجھے تھوڑا سا الاؤ کریں نا, آگے ہم چل کے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہی پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اس پہ کلیئر ہو جائیں. جی سر. تو میرا خیال ہے صحیح ہے سر. آگے چلتے ہیں, اگر پھر جی سر. آپ کی تشنگی نہ ہوئی تو ہم دوبارہ اس پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے سر. تو بالکل لیٹ صحیح می ہے. کنٹینیو. اور میں یہ اوکے. آپ کا کوشچن جو ہے اس کو ہم فی الحال یہاں تک روک لیتے ہیں. یہ ہے نا, اوکے جی سر. ٹھیک ہے. اچھا just a second. اچھا سائیکولوجیکل کنٹریکٹ جاب انوالومنٹ, میں تھوڑا سا ارلی ہو جائے گا, میں آپ کو بیہیویئر کی طرف لے جاؤں, تھوڑا سا ارلی ہو جائے گا. اچھا دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ, بلکہ ہاں اسکرین ڈسیبل ہوگی. اوکے جسٹ اے سیکنڈ, جسٹ اے سیکنڈ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر. جی سر. آپ کلیئر ہے. ایک سیکنڈ. ہاں یہ سیکنڈ. یہ میوٹ ہو گیا سارے, میوٹ ہو گیا نا. اچھا ہو گیا اس پہ, یہ اوکے 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 اس پہ ٹھیک ہے. اچھا ویئر ور وی, جسٹ اے سیکنڈ. اچھا دیکھیں میں اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, یہ آپ کا جو کوشچن تھا نا کہ جی بیہیویئر, تو دیکھیں جب آپ ایک مائنڈ سیٹ آپ کا بن جاتا ہے, مینٹل سیٹ آپ کا بن جاتا ہے, آپ ایک تھنکنگ کرتے ہو, آپ کا ایک انٹینشن ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا, تو یہ آپ کا کیا ہوا, یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہوا. اور پھر جب آپ بیہیو کرتے ہو اسی طریقے سے, آپ کوئی کام کرتے ہو, کوئی ایکشن لیتے ہو, تو یہ اب یہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے. آر یو گیٹنگ می؟ اچھا اچھا دیکھیں گڈ.
इसके ذرا डिफरेंस को आप देखें ना, एटीट्यूड आपके इन तीनों चीजों से, ये आप देख रहे हैं कॉग्निटिव, आप इस पहले एटीट्यूड के कंपोनेंट्स को देखें, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियरल, इन तीनों चीजों से किसी के, अच्छा माइंड सेट से अगर आप कुछ बनाते हो या आप कुछ इफेक्शन इमोशनल आपका स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है, या आपका एक बिहेवियर वाइज आप कुछ करते हो तो उससे आपका एक क्या कहते हैं आप इंटेंशन आपका बन जाता है, या आपकी एक फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, तो ये होता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड बेसिकली आपकी थिंकिंग, आपका बिलीफ है, आप देख रहे हैं एवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स और जजमेंट्स। बिहेवियर तो आप फिर एक प्रैक्टिकल स्टेप उठाते हो, आप कुछ करते हो, आप उसकी तरीके से एक्ट करते हो, यू बिहेव। मेरी बात आप समझ रहे हो? एंड व्हाई यू बिहेव, बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंसेस बाय, जिस तरह मैंने कहा ना, एंड एटीट्यूड के बाद आप क्या करते हो, आप एक बिहेवियर शो करते हो, एक्शन, एक काम। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो एटीट्यूड आपकी थिंकिंग, आपका वो माइंडसेट, और बिहेवियर फिर आपका वो प्रैक्टिकल एक्शन। मेरी बात आप समझ रहे हो? शासन, इसको जब मैं वो करूँ क्या तरीका होगा? अच्छा यहाँ से, ठीक, स्टॉप शेयरिंग। अच्छा साहबजादा, हेलो, जी सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है अच्छा, सर। तो आप अब समझ गए आप इस पे कि जी बिहेवियर सर। क्या, जी सर। देखें एटीट्यूड जो होता है ना, इट इज जी बेसिकली सर। योर माइंड स्टेट। आप एक जी थिंकिंग सर। करते हो, बिलीफ एक चीजों के बारे में, आप एक चीज को परसीव करते हो, आप एक बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक बिलीफ होता है। आर यू गेटिंग मी? और फिर यस आप सर। क्या करते हो, आप उसके बाद फिर आप एक इंटेंशन लेते हो कि मैं ये काम करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिलीफ। आर यू गेटिंग मी? जी सर। तो यस ये सर। यस आपका सर। क्या होता है, ये आपका वो प्रैक्टिकल काम, ये आपका बिहेवियर। आर यू गेटिंग मी? जी सर बिल्कुल सर। और ये बिहेवियर डेवलप होता है आपके एटीट्यूड से। लेकिन जिस तरह मैंने उस साइकोलॉजिस्ट का कहा ना कि बाज औकात ये रिवर्स भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है सिचुएशन पे, डिपेंड्स करता है आपके एनवायरनमेंट पे। और मैं एक चीज, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और अगर आप इसके रिसर्च पेपर्स आप देखें ना, तो हम इसको 2+2 में की तरह एक क्लियर चीज नहीं बता सकते। आप जी। मोटिवेशन को एग्जाम्पल ले लें। मोटिवेशन एक 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 कितना आम सा फिनोमेना मुझे नजर आता है कि यार आई एम मोटिवेटेड, लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं आजकल के जो अभी तक रिसर्च हुई, मोर देन 3000 फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन। आप मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जी, एटीट्यूड को फॉलो कर, बिहेवियर फॉलो करता है एटीट्यूड को। आपका एटीट्यूड, आपका एक बिलीफ डेवलप होता है, यू गो फॉर सम प्रैक्टिकल एक्शन, यू चेंज योर पर्सनालिटी, आपके उसके मुताबिक आप एक माइंडसेट डेवलप कर लेते हो, फिर आप उस तरह के एक्शंस लेते हो, उस तरह का काम करते हो, बिहेवियर शो कर लेते हो, यू बिहेव लाइक ऑन द बेस ऑफ योर एटीट्यूड। लेकिन बाद वक्त ये रिवर्स भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, it depends upon your environmental setting, it depends upon your colleagues, it depends upon your organizational culture. Are you getting me? आगे बढ़े साहबजाद? यस सर। आगे अच्छा सर। ये सारे सुन रहे हैं ना, कि नहीं सिर्फ साहबजादा सुन रहा है? दाऊद सुन शासन? रहे हैं सर, सुन रहे हैं अच्छा, सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपने साथ क्वेश्चंस वगैरह, आपको मैं टाइम दूंगा इंशाल्लाह। तो उसमें फिर ये है कि सेर हासिल, मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन, ये तो खैर रेलेवेंट सा था क्योंकि एटीट्यूड बिहेवियर हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसके बाद एंड में फिर आपका कोई क्वेश्चन वो होता है तो प्लीज यू कैन आस्क, ठीक है? ओके, ठीक, इसको ये करो अनचेक, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आप देखिए ना ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा जॉब इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह मैंने कहा साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, इट इज अ बिलीफ in the degree of influence
over the job, competence, job meaningfulness and autonomy. जब एक एम्प्लॉय ये समझता है कि ही और शी साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, तो ये कैसे एम्पावरमेंट है कि उनका ये बिलीफ देखें कि जी he or she is and has some influence over the his job or her job, has the competency, and job has some meanings for her or him, and overall autonomy. एक एम्प्लॉय को अगर ऑटोनॉमी मिले, उसको जॉब पे कंट्रोल हो और वो ये समझता हो, देखें एम्पावरमेंट मैंने नहीं कहा सिर्फ साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, वो माइंड से याद रखें, रिसर्च हुई है और दुनिया मानती है, और इस पे तो आजकल बहुत ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस और इन तरह की ये बिहेवियरल और ये माइंडसेट से रिलेटेड फिनोमेना जितने भी हैं, वो कहते हैं कि जी डर, फियर, ये तमाम चीजें माइंड से रिलेटेड है. आर यू गेटिंग मी? खतरा या प्रॉब्लम या कोई भी चीज, मतलब ये इट डिपेंड, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड. आप एक चीज को कैसे परसीव करते हो और कैसे, मतलब ये कि आप एक बिलीफ डेवलप करते हो, और ये बिलीफ चेंज भी हो सकता है. ये बिलीफ सालों सालों का बिलीफ, मैं कहता हूं कि जो कि प्रूव्ड है, दिनों में, मिनटों में, सेकंडों में चेंज हो सकता है. और सेकंडों का बिलीफ या मतलब ये है कि एक बिलीफ मतलब ये कि सालों में भी चेंज नहीं हो सकता. इट डिपेंड्स. आप देख रहे हैं ना, मैं थोड़ी सी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे चला जाऊं, तो मतलब कुफार मक्का जिसके बारे में हम बचपन से सुनते हैं कि जी जमाने जाहिलियत था, कैसे कैसे लोग थे, कितने मतलब अजीब से, वो क्या क्या नहीं करते थे, लेकिन कुरान मजीद ने, अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम ने उनकी उनकी कितने सालों की लाइफ, कितना स्ट्रांग उनका बिलीफ, उनका बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स, उनका थॉट से कैसे चेंज हो गया. तो मतलब ये भी एक बड़ा डिबेटेबल चीज है कि जी बिलीफ चेंज नहीं होता, बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल से होता है, बाज़ औक़ात बड़ी जल्दी हो जाता है. तो बात मैं कहाँ पे कर रहा था? साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट. तो ये सिर्फ एम्पावरमेंट नहीं है कि जी फॉर एग्जांपल साहबजादा जो है, साहबजादा यासीन नाम है ना, साहबजादा यासीन जो है, उसको मैं कहूँ कि यार नाउ यू आर एचओडी एंड यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो ठीक है आप एम्पावर हो गए, लेट्स सपोज. लेकिन असल चीज जो मैं कह रहा हूँ साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, उसमें ये फर्क ये है कि आप ये बिलीव करते हो कि मैं, मेरा एक इन्फ्लुएंस है, मेरी से है, मेरी एक मतलब ये है कि ऑटोनॉमी है मेरे साथ, और ये तमाम चीजें लिखी हुई नहीं है, बल्कि यू बिलीव, क्योंकि ये आप बिलीव कर गए हो. आप सब, जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इट इज डेंजरस, पोल्यूशन इट इज हार्डस, मतलब नारकोटिक्स. अब ये तमाम चीजें मैं, अगर मुझे कोई बताए या किसी को बताए तो वो तो ठीक है, एग्री, प्रूफ है कि ये डेंजरस है सेहत के लिए. लेकिन असल चीज है कि हाउ हाउ यू एग्री, हाउ यू चेंज योर माइंडसेट, आप ये बिलीफ कैसे डेवलप कर लेते हो. आवाज है? हाँ, अनम्यूट हो गया, क्या हो गया? एक सेकेंड. द अनम्यूट थे, टू म्यूट थी क्या ना, आवाज हो सकता है ना, ठीक, ओके. तो मतलब ये कि आपका ये बिलीफ हो कि यू आर साइकोलॉजिकल एम्पावर्ड. अच्छा, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर और जॉब परफॉर्मेंस, ये भी आपके जॉब एटीट्यूड. साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट का, इसका ये बिलीफ कि मेरे साथ मुझे ऑटोनॉमी भी है, इसका ये बिलीफ माइंड से कि मुझे, मैं इन्फ्लुएंस भी करता हूँ, मेरी डिसीजंस मेकिंग में भी हाई से है, मुझे जॉब पे कंट्रोल भी है, और मुझे एक आज़ादी खुद मुख्तारी भी है, उसका ये बिलीफ, आपका ये बिलीफ. आप कुर्तबा यूनिवर्सिटी में हो, कुर्तबा यूनिवर्सिटी कहती है कि यू आर एम्पावर, लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैं एम्पावर नहीं हूं. लेकिन अभी आप कहते हो, ये मैं एक से केस बताइए, आमिर को मैं कहता हूं कुर्तबा यूनिवर्सिटी में लोग कहेंगे कि यार आमिर इज नॉट एम्पावर, लेकिन आमिर कहता है कि आई एम एम्पावर बिकॉज ही हैज द बिलीफ, वो ये समझता है कि मैं एम्पावर हूं. तो सेम इज द केस विद शासन यू. ओके, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर एंड जॉब परफॉर्मेंस, दीज आर आल्सो एटीट्यूड्स. और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ये बड़ा अहम. ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट,
identifying with a particular organization and its goals while wishing to maintain membership in the organization. Commitment, वो आपका एक क्या कहते हैं, एक अहद, हाँ, आपकी एक जिसे हम कहते हैं ना कमिटमेंट. आप ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट किस टर्म में? आइडेंटिफाइंग विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स. आप एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो. कैसे? while wishing to maintain a membership in the organization. आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एसोसिएशन, एक मेंबरशिप, उसका एक वो कहते हैं ना कि यू आर द पार्ट ऑफ माय टीम. तो आप ये टीम जब आप कहते हो, टीम नहीं मतलब ये कि जब आप ये ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप की बात करते हो तो आप कमिटेड हो गए हो, आप इसका हिस्सा हो गए हो. वो कहते हैं ना कि इसके सुख दुख के साथी बन गए हो. हाँ, और 3 डायमेंशंस हैं. आप जरा इस 3 डायमेंशंस को देख लें तो ये आपकी इस कमिटमेंट और इस डेफिनेशंस को पूरा कवर कर सकती है. कैसे जी? इफेक्टिव. इफेक्टिव जब भी ये टर्म आता है, अफेक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस, आपके जज्बात, एहसासात, इन चीजों से रिलेटेड है. इमोशनल अटैचमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन. इमोशनली वो कहते हैं ना कि एक मतलब एक मूवी थी बागबान अमिताभ बच्चन की, उसमें मतलब आप अगर किसी टाइम देख लें सर केस स्टडी के तौर पे, सिर्फ इस इफेक्टिव कमिटमेंट की मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए. वैसे काफी मूवीज होंगी लेकिन ये मेरे ज़हन में अभी आ गई है. इसमें ऑर्गेनाइजेशन, वो अमिताभ बच्चन साहब एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ होता है, फाउंडर होता है या बानी होता है, प्रेसिडेंट. वो एम्प्लॉयज को कहता है कि आप मेरे खानदान के लोग, रिश्ता है. पता नहीं, आई डोंट नो ये रिश्ते मूवी था कि बागबान मूवी था, लेकिन इसमें एम्प्लॉयज और अमिताभ बच्चन क्या करना चाहता था, क्या डेवलप करना चाहता था कि आप एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशंस का एक अफेक्शन, एक इमोशनल अटैचमेंट. मेरी बात आप समझ रहे? फॉर एग्जांपल मैं चूंकि शासन मेरे सामने है तो मैं इसकी बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ. बाकी भी है तमाम फेलोज की. आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे को जरा इस्तेमाल यूज करेंगे आपके वर्ड्स. लेकिन ये कि शासन जो है, लेट्स सपोज वो कहता है कि कुर्तबा यूनिवर्सिटी के नुकसान पे मैं खफा होता हूँ और इसके फायदे पे मैं खुश होता हूँ. अब ये क्या है? इसकी इफेक्टिव कमिटमेंट. आमिरुल्लाह फॉर एग्जांपल एमएस पीएचडी के कोऑर्डिनेटर हैं. ये जितने स्टूडेंट्स आएंगे, जितना इदारा अच्छा होगा, आमिरुल्लाह इस पे खुश होगा. इफेक्टिव कमिटमेंट. और इसके नुकसान पे खफा. ओके जी, सर इसकी कंटिन्यूअस. हाँ हाँ जी. इफेक्टिव कमिटमेंट की एक एग्जांपल हम इस तरह भी ले सकते हैं, जिस तरह ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना सर, हाँ कि इसके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट होती है पार्टीज ओके के साथ, ओके वो बेस कर रहा है उन बिलीफ और वैल्यूज के साथ, क्या वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं. वेल तो डन. वो भी सर इफेक्टिव कमिटमेंट. जबरदस्त साहबजादा यासीन. मैंने आपको बताया आपको क्यों इतनी तारीफ की. मुझे एक छोटा सा एक मूवी का एक क्लिप याद आ गया, और उसमें वो एक पॉलिटिकल वर्कर आपके एग्जांपल से रिलेटेड है तो इसलिए मैं कोट करना चाहूंगा. वो पॉलिटिकल वर्कर जो होता है, रंग दे बसंती एक मूवी है, और वो मतलब पेट्रियाटिज्म से रिलेटेड है. आप जरा आविश आप इसको देख लें, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग. उसमें वो एक पॉलिटिकल वर्कर होता है स्टूडेंट फेडरेशन का. पॉलिटिशियन उसे पैसे देता है तो वो कहता है कि सर ये काम मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, मेरा एक लगाव है, एक रिलेशनशिप है, एक अफेक्शन, एक क्या कहते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट है. तो साहबजादा यासीन, यू आर राइट. अच्छी रेलेवेंट एग्जांपल आपने दी. ओके. अच्छा, मेरी आप सब लोगों से ये दोबारा वो कहूंगा कि चूंकि हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं जूम की उस मोडालिटीज पे, प्रोसीजर पे, आप सबको मेरी आवाज आप भी सुन रहे हैं मुझे? सिर्फ साहबजादा यासीन सुन रहे हैं कि नहीं सारे इस तरह उन सब का माइक जो है वो ऑन है? साहबजादा यासीन जी सर, सारे सुन रहे हैं सर, सारे सुन रहे हैं चैट ना? कर रहे हैं. जी सर, सुन रहे ओके, हैं सर. दैट्स गुड दैट्स गुड. तो मतलब आपके जहन में भी कोई क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है कि एंड में मैं आपको फिर टाइम दूंगा. लेट्स सपोज कि जी आप रेज योर क्वेश्चन, या आप बीच में भी बात कर सकते हैं. ठीक है, मतलब वो ये टेस्ट केस पे करते हैं ना. अगर इस तरह मजा ना आया, लेट्स सपोज आपने वो नहीं किया, तो फिर हम आखिर में टाइम देते हैं. वाइब्रेशन आ रही है, इको. शासन साहब का माइक 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 जो है वो अनम्यूट शासन है.
वो डबल इसीलिए आ रहा है सर, But वो आपके that's पास शासन बेटा है ठीक. अब सही है, क्लियर? को नहीं सर, शासन ये जरा थोड़ा सा इसको म्यूट करो, इसका स्पीकर ना कम करो. बस मोमेंट का पर हेलो ओके. शासन का माइक अनम्यूट दे. असल में सर आपने मैं ऐसा करता हूँ सबको, मैं खैर म्यूट कर लूंगा अगर वॉइस का कोई इशू. ये शासन आपके पास बैठा है इसीलिए सर ये डबल आ रहा है. शासन आपका माइक बंद है? से लो किया है लेकिन मेरे ख्याल में चले अब सही है. ओके ठीक. अच्छा जी, कोई क्वेश्चन होता है लेट्स सपोज, तो खैर आप शासन से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे भी मैसेज कर सकते हो, या इधर रेज योर हैंड. परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. ओके, 3 dimensions: effective, अच्छा, continuous commitment, economic values of staying. आप कास्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखते हो, आप कहते हो कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशंस में हूँ, why I am committed to this organizations, because I am earning good, क्या कहते हैं, मुझे अच्छा एक पैकेज मिलता है, फ्रेंच बेनिफिट्स मुझे मिलते हैं, सैलरी ज्यादा है मार्केट से, या मुझे कुछ इकोनॉमिक वैल्यू मिलता है इन टर्म्स ऑफ मनी, या मतलब ये करियर ग्रोथ, या कोई मतलब ये कि प्रमोशन या पैसे. इकोनॉमिक वैल्यू पे अगर आप परखते हो अपनी कमिटमेंट को, तो ये आपकी कंटिन्यूअस कमिटमेंट. वाइल नॉर्मेटिव कमिटमेंट, आप कहते हो कि यार मोरल और एथिकल ऑब्लिगेशंस है, आप मतलब ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशंस में हो तो ये अच्छी बात है कि मैं इसके साथ कमिटेड हूँ, ये बुरी बात है कि मैं इसके साथ लॉयल ना रहूं, लेट्स सपोज. और दूसरी, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जी ये एक एथिकल या मतलब ये कि मोरल ऑब्लिगेशन है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आई हैव टू बी कमिटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज आई एम पेड फॉर दिस. मैंने एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट या एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ये मेरी अब मोरली भी ड्यूटी है कि मैं इसके साथ कमिटेड रहूं. तो ये 3 डायमेंशंस हैं इसके कमिटमेंट में. जी, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ स्टेइंग ये कि आप एक ऑर्गेनाइजेशंस में रहते हो और आपको कुछ पैसे मिलते हैं, मतलब ये कि आप तब कमिटेड होते हो जब आपको पता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशंस में मैं इसलिए कमिटेड हूँ कि मुझे अच्छा पे करती है, मुझे प्रमोशन देती है, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मुझे ऑफिस देती है, और मतलब ये कि तमाम चीजें, बेनिफिट्स वगैरह. अच्छा, हैज सम रिलेशन टू परफॉर्मेंस स्पेशली फॉर न्यू एम्प्लॉइज. ठीक है, और कमिटमेंट का एक रिलेशनशिप है परफॉर्मेंस के साथ भी, नो डाउट. परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, पीओएस, परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. इसमें आप ये देखते हो कि एक एम्प्लॉय, आसान अल्फाज में, एक एम्प्लॉय क्या परसीव करता है, और परसीव क्या करता है, ये परसीव करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस मेरे साथ कितना मदद करती है, मेरा कितना ख्याल रखती है, और मेरे साथ कितना ये फेयर है. हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू माय करियर, माय लर्निंग, माय स्किल, माय लाइफ, माय एवरीथिंग, और या मी माई सेल्फ, ऑर्गेनाइजेशंस कितना मेरे साथ कंट्रीब्यूट करती है वेल बींग्स के लिए. मुझे सैलरी देती है मेरी, मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं ना, परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट तभी हाई होगा जब वो ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज ये परसीव करेंगे कि ये मेरे साथ प्रमोशन में फेयर है, ये मुझे अपॉर्चुनिटीज देती है, ये फॉर एग्जांपल मुझे मेडिकल इंश्योरेंस है इसका, ये मतलब इसने मेरे बच्चों के लिए मतलब एक फीस जो है वो हाफ रखी. अब ये तमाम चीजें क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल परसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट. आप देखते हैं इस्लामिक कॉलेज अभी भी खैर है नो डाउट, या यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर, या इस तरह आजकल तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये चीजें काफी कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है. ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसलिए ज्यादा उनका एक एफिलिएशन, कमिटमेंट, एक लगाव, एक अफेक्शन, एक इमोशंस, एक प्यार मोहब्बत, इसलिए कि और इनके एम्प्लॉयज क्या होते थे और अभी क्या है इस तरह कि वो उनके फ्रेंच बेनिफिट्स का ख्याल, हाउस अलाउंस, या मतलब ये कि अकोमोडेशन,
ٹرانسپورٹیشن، ان کی میڈیکل اور ان کی مطلب پروموشن اور جاب سیکیورٹی، یہ تمام بینیفٹس امپلائیز پرسیو کرتے ہیں کہ یس مجھے یہ چیزیں حاصل ہیں. Organization is sparing a substantial amount of its resources to me for my well-being. To me means my well-being. Higher when rewards are fair. POS کب higher ہوگا؟ جب ریوارڈ فیئر ہوں گے. پرفارمنس سر بیسڈ. یہ جی پرسیو آرگنائزیشن سپورٹ ایکسپیکٹینسی تھیوری پہ بیس کرتی ہے نا کہ ایگزیکٹلی. جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اتنا اس سے اتنا سوشل جو ہے ہمیں ایکسچینج تھیوری ریوارڈ. بھی آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ دوسری سوشل ہاں بالکل ایکسچینج سر، تھیوری. ہاں تو یہ اس میں کوئی بالکل شک سر. نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا اچھا گڈ. ایک دوسری بات اچھا اس میں یاسین ایک اور چیز ایڈ کروں. جی سر. پرسیوائزیشن سپورٹ میں یہ ہے کہ آپ کی پرسپشن، اور یہ پرسپشن ہاں بڑھے گی یا کم ہوگی، ڈیفینیٹلی یہ ڈیولپ یہ ریلیشن شپ ہے اس کا آرگنائزیشنز کے اس ایم ایچ کے ساتھ، ان ایکشنز کے ساتھ، ان پالیسیز کے ساتھ جو کہ یہ کرتے ہیں. اچھا employees are involved in decision making obviously and supervisors are seen as supportive. ٹھیک ہے نا؟ آج کل سپروائزرز کو وہی اچھا جانا جاتا ہے. آج کل کی آرگنائزیشنز کی فلاسفیز اور کارپوریٹ کلچرز اور اچھی آرگنائزیشنز میں جہاں پہ ایک سپروائزر پلے دا رول آف ایک سپورٹیو، اور پھر لانگ ٹرم میں یا مطلب اچھے ٹرم میں مینٹور آپ اسے کہہ سکتے ہو، ہاں، یا کوچنگ کی طرف. تو وہ مطلب تھیوریکس والا سپروائزر نہیں ہے کہ وہ ایک کورسیو طریقے سے ہو. اینی وے آگے چلتے ہیں. ہائی پی او ایس از ریلیٹڈ ٹو ہائر او سی بیز. ہائر آپ کی پرسیو آرگنائزیشنل سپورٹ تبھی زیادہ ہوگی جب آرگنائزیشنل سٹیزن شپ بیہیویئر بھی بڑھے اور آپ کی پرفارمنس بھی بڑھے. آرگنائزیشنل سٹیزن شپ بیہیویئر جب آپ آرگنائزیشنز میں اپنے آپ کو ایک اس کے سٹیزن کے طور پہ آپ اپنے آپ کو مانو. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ اس کے ساتھ لائل ہو، آپ اس کے ساتھ ایک ایک کمٹمنٹ ہو آپ کی، اور آپ اس کے ساتھ مطلب یہ کہ ویلیوز کا خیال رکھو، اس کے کلچر کا خیال رکھو. تو اب یہ کیا ہے؟ چونکہ یہ تمام جاب ایٹیچیوڈس ہیں اور یہ تمام ریلیٹڈ بھی ہیں ایٹ ٹائمس، تو اور اس جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کی پرفارمنس آٹومیٹیکلی بڑھے گی، بیکاز یو لو یور آرگنائزیشن اینڈ the more you love your organization, the more you nurture that notion that you organization is supportive with you, so you will perform out class. آپ دیکھتے ہو نا، میں کہتا ہوں پی او ایس پرسیو آرگنائزیشنل سپورٹ قرطبہ یونیورسٹی میں نے امپلائیز میں، کوآرڈینیٹرز، ٹیچرز میں بہت زیادہ دیکھا. اب دیکھیں عامر اللہ ہمارا کوآرڈینیٹر ہے، چونکہ ہمارا ریلیشن شپ اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو میں اس لیے اس کو کوٹ کرتا ہوں فار یور انڈرسٹینڈنگ. اب اس کی چونکہ پی او ایس زیادہ ہے تو اس کی پرفارمنس بھی بڑھ گئی ہے، زیادہ پرفارم کرتا ہے. اینی وے امپلائی انگیجمنٹ، the degree of involvement with satisfaction and enthusiasm for the job. Engagement, employee engagement. The degree of involvement, the more you are involved, the more you are satisfied and enthusiastic for your job. For example, میں شاسن سے کوئی کہے یا آپ میں سے صاحبزادہ سے کوئی کہے کہ صاحبزادہ now you are the coordinator یا you are the coordinator for scholarship, student scholarship, یا یو آر دا آپ کے ساتھ ایک چارج ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر اسپورٹس. تو جب یہ تبھی انتوزیاسٹک ہوگا، یہ اچھا اس طرح تبھی نہیں، یہ انوالو اگر ہو، سیٹسفائی ہوگا اور انتوزیازم کے ساتھ کام کرے گا تو سمجھ جائیں کہ صاحبزادہ یاسین از انگیجڈ. ہاں، انگیج مطلب جاب انگیجمنٹ یا امپلائی ایز امپلائی اس کی انگیجمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہے. یہ ڈگری زیادہ، جتنا زیادہ سیٹسفیکشن ہوگی، زیادہ انوالومنٹ ہوگی، زیادہ انتھوزیازم ہوگا تو مور جاب انوالومنٹ آف امپلائی. اچھا engaged employees are passionate about their work and company feel a deep connection. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ انگیجمنٹ کب آتی ہے؟ انوالومنٹ سے، سیٹسفیکشن سے، and enthusiasm, your enthusiasm for the job.
And why your enthusiasm? Definitely एक environment की setting, एक culture, उसके मतलब ये कि policy, हर एक चीज, चाहे देखिए जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि बात डिस्कशन पे यहाँ पे आ गई है, and you are PhD scholars, remember एक चीज मैं आपको बता दूं, always think, always think out of the box. ये एक terms हम सुनते हैं out of the box, लेकिन out of the box thinking is basically critical thinking, and it leads to solving so many problems, and it leads to innovative solutions, honestly. तो अब एक बात, चूंकि मैं इसलिए डीप चला गया कि जब हम कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, तो उस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करूंगा, या कैसे मुझे पता चलेगा, या कैसे मुझ पे इफेक्ट पड़ेगा, उसका कैफेटेरिया, उसका स्टाफ रूम, उसका ऑर्गेनाइजेशंस के केबन्स, ऑफिसेज, वहाँ का एम्प्लॉयज का लेट सपोज ड्रेस कोड, वहाँ की पॉलिसीज, वहाँ का बिहेवियरल ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ का बिहेवियर, वहाँ की ट्रेनिंग्स, वहाँ का कल्चर्स, वहाँ का मतलब ये कि जॉर्गन्स, वहाँ की तमाम चीजें, चाहे वो मटेरियल हो या इमटेरियल कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये तमाम मिलकर क्या करते हैं, ये एक एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई, इन्वॉल्व, enthusiastic बनाते हैं. Okay, engaged employees are passionate about their work and company feel a deep connection. इस तरह हमने कहा ना, कनेक्शन बन जाता है. Are these job attitudes really distinct? अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जी ये डिफरेंट है या सेम है, रिलेटेड है या नॉट रिलेटेड है या ओवरलैप है, तो जी इस पे नो, दीज एटीट्यूड्स आर हाईली रिलेटेड. ये डिस्टिंक्ट नहीं है, रिलेटेड है. जिस तरह मैंने कहा ना, परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, हाँ, जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ये रिलेटेड है. इनमें कोई स्ट्राइकिंग डिफरेंस ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कहूं कि नहीं जी ये टोटली डिफरेंट एंड कमिटमेंट इज टोटली डिफरेंट. मेरी बात आप समझ रहे हो? बल्कि ये किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड, यू कैन रिलेट इट, इट लीड्स टू ईच अदर. अच्छा, वेरिएबल्स में भी रिडंडेंट बाज औकात क्या होता है, बाज औकात फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर और परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. अब क्या होता है, मैं बाज औकात सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं एक वेरिएबल्स को मेजर करता हूं और बाज औकात में दूसरे वेरिएबल्स को मेजर कर लेता हूं, एक को छोड़ के दूसरे की तरफ चल लेता हूं. तो अब ये क्या होता है, मैं कहता हूं कि जी पीओएस भी एक 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 सेम चीज है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बाज औकात में क्या कहता हूँ, पीओएस को छोड़कर मैं दूसरे एटीट्यूड या दूसरे वेरिएबल्स की तरफ मूव हो जाता हूँ. लेकिन मतलब ये डिपेंड करता है. लेकिन इसमें कहने का मकसद ये है कि हम बाज औकात सेम थिंग अंडर ए डिफरेंट नेम, ये दोनों बाज औकात इतने रिलेटेड हो जाते हैं कि हम इसको कहते हैं कि दीज आर ऑलमोस्ट इतना रिलेटेड कि हम इसको कहते हैं कि जी ये एक ही चीज के दो नाम है, लिहाजा हम एक को छोड़ के दूसरे की तरफ चले जाते हैं. इन अदर वर्ड्स, दीज आर रिलेटेड, स्ट्रांगली रिलेटेड. ठीक है, एक 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 दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है. तो बात आप देखिए ना, हमने जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में क्या कहा कि जी एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो मैंने कहा इन्वॉल्वमेंट होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी, सेटिस्फैक्शन भी साथ में होगा, सेटिस्फैक्शन भी होगा तो इंथुजियाज्म भी होगा. तो अब ये देख रहे हैं सारे रिलेटेड, क्योंकि ये बिहेवियरल चीजें. While there is some distinction, there is also a lot of overlap. बाज़ औक़ात डिस्टिंक्शन भी होती है, जिस तरह मैंने कहा डेफिनेटली पीओएस और इन्वॉल्वमेंट ये एक चीज तो नहीं है ना कुछ डिफरेंस तो है इसमें, नो डाउट. हम इसको अलहदा मेजर कर सकते हैं, अलहदा लिकट स्केल अलहदा, लेकिन वो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये बाज़ औक़ात ये ओवरलैप भी है, करीब करीब एक दूसरे के साथ इतना इतना मिक्स, इतना ओवरलैप. एनीवे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की वाइज थी. तो स्लाइड से इन टोटो मैं यही कहूंगा कि दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट. वो कहते हैं ना इम्तियाजी डिफरेंस, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ फर्क. अच्छा जी, जॉब सेटिस्फैक्शन, वन ऑफ द प्राइमरी जॉब एटीट्यूड्स measured, broad term involving a complex individual summation of a number of discrete job elements. आप देख रहे हैं कि जी जॉब सेटिस्फैक्शन
ہم کیا کرتے ہیں ایک کمپلیکس انڈیویجول، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ جی سیٹسفائی ہوا جاب سیٹسفیکشن، تو اب یہ کمپلیکس انڈیویجول، اور ڈیفینیٹلی ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر دوں، انڈیویجولز آر کمپلیکس. کیوں کمپلیکس؟ ہنسی، خوشی، ہیپینس، اینگر، اینیموسٹی، ہاں، جیلسی، پیشن، موٹیویشن، پرفارمنس، کمٹمنٹ، تھنکنگ، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کو کمپلیکس بنا دیتی ہیں. اور یہ کمپلیکس انڈیویجولس جب سیٹسفائی ہوتا ہے اپنے جاب سے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جاتا ہے، تو ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہی اور شی از سیٹسفائڈ. اب دیکھیں ہاؤ ٹو میجر، یہ خیر تھوڑی سی انہوں نے ڈیپ تھوڑے سے ہو گئے کہ جی سنگل گلوبل ریٹنگ بھی ہے، 1 کوسچن اور 1 آنسر، سبمیشن سکور مختلف، لیکن اس کے علاوہ بھی میں ایڈ کروں گا کہ جی اسکیلز ہیں جاب سیٹسفیکشنز کے، اور آپ اس کو میجر کر سکتے ہو، کیونکہ آرگنائزیشنز میں یہ ایک ٹائم پہ کافی امپورٹنٹ فینامنا بھی بن گیا تھا یہ، اور ابھی بھی انفیکٹ ہے کہ جی سیٹسفیکشن کون امپلائیز سیٹسفائی ہوں گے، یا کیسے ہاؤ وی کین سیٹسفائی امپلائیز فرام دیئر جاب. تو اسی لیے اس کو زیادہ اس پہ بڑا ڈیپ کام ہوا. آر پیپل سیٹسفائی ان دیئر جابس؟ According to US study, yes, but the level appears to be dropping. Pay and promotion are the most problematic elements. Honestly, ایک امپلائیز اکثر، اگر آپ میں سے تمام میجورٹی آپ جاب کر رہے ہو، کرتے ہو، کیا ہوگا، یو آر انوالو، جو ایک امپلائی سارا سال خوش ہوگا آرگنائزیشن سے، لیکن ایک ٹائم آئے گا، اور وہ ہوتا ہے نارملی ہر سال کے اینڈ میں اس کا انکریمنٹس، سیلری رائز، پروموشن، پرفارمنس بیسڈ ریوارڈ جسے ہم کہتے ہیں. ایک امپلائی کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا. یہ بہت ریئر کیسز ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کبھی بھی، نو ایبسولوٹ نہیں، لیکن جس طرح ہے نا کہ پرابلمٹک ایلیمنٹس ہیں، پے اینڈ پروموشن، جی میری پروموشن میں زیادہ کام کرتا ہوں، نو دس از امپورٹنٹ، میں کم. اب اس کے بھی سولوشنز ہیں، یہ نہیں کہ اس کا کوئی، آج کل کے پی آئیز ہیں، کی پرفارمنس انڈیکیٹر، ہر ایک امپلائیز کے لیے کی پرفارمنس میجرمنٹ اپریزل سسٹم پیمز آ گیا ہے، اور اس پہ بڑے جدید طریقے سے کام ہوا ہے. تو اب وہ پرانے یا مطلب ٹریڈیشنل یا کلاسیکل طریقے سے پروموشن اور پے کا وہ سسٹم نہیں ہے، بلکہ آج کل پرفارمنس بیسڈ وہ ہے، کے پی آئیز ہے. جس طرح میں نے کلاس میں کہا تھا نا، فزیکل کلاس میں، پریویس اس لیکچر میں، کہ جی ملیشیا کی صرف میں بات کروں گا کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ کے بھی کے پی آئیز ہے، اور ایک پی این کے بھی کے پی آئیز ہے، کی پرفارمنس انڈیکیٹر. جب مجھے پتا ہوگا کہ دیز آر مائی ٹارگیٹس اور یہ میرے کے پی آئیز ہیں، آئی ول ہیو ٹو اچیو دوز کے پی آئیز ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر. میں نے کے پی آئی اچیو کیے، مجھے اس کا ریوارڈ ملا. ہاں یہ بھی پھر ایک فردر میں اگر دیکھوں کتنے اچیو کیے، کتنے پرسنٹ اچیو کیے، تو یہ ایک بڑا سسٹمیٹک، اسی لیے ان چیزوں سے یہ سیٹسفیکشن کا ایشو تھوڑا سا ریز ہوتا ہے. اینی وے، causes of job satisfaction. Pay influences job satisfaction. جس طرح میں نے کہا نا کہ pay, compensation, promotion, these are some causes that leads to job satisfaction, اور یا پھر اس کی مطلب dissatisfaction کی طرف جاتے ہیں. اچھا دیکھیں، جاب سیٹسفیکشن کا ایک بڑا ایلیمنٹ کہتے ہیں کہ جی پے، لیکن ضروری بھی نہیں. میں سائنسز میں تھا when I was in BBA student، تو میرے ایک ٹیچر تھے، وہ کہتے کہ مجھے اس ٹائم پہ when I was BBA student، مطلب آلموسٹ 10 ایئر پہلے، وہ کہتے کہ جی مجھے آن لائن یہ کال سینٹر ایک ٹائم پہ بڑا اس کا ٹائم تھا، کال سینٹر کی جاب مجھے ملی، اور وہ جاب تھی یو ایس بیسڈ کسٹمرز تھے، ان کے ساتھ ڈیلنگ تھی. لیکن اس ٹائم پہ میری سیلری 70,000، جس طرح آج میں کہوں کہ 2 لاکھ روپے لیٹ سپوز بی بی اے یا ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ کے، فریش گریجویٹ کے لیے. لیکن میں نے جاب کیوں چھوڑی؟ جاب اس لیے چھوڑی کہ سیلری تو اچھی تھی، ورکنگ آورز بھی لیٹ سپوز ریلیکس تھے، رات کا کام، لیکن اس میں مسئلہ، اور گھر سے کام تھا، اور چیک اس طرح اکاؤنٹ میں نہ کریڈٹ ہو جاتا. پرابلم یہ تھا کہ ان کسٹمرز کا بیہیویئر واز ناٹ، مطلب ایک ہیوملیٹنگ قسم کا بیہیویئر.
हाँ, एक हार्श बिहेवियर था जिसमें डिग्निटी नहीं थी, तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज जॉब ड्यू टू जॉब नेचर, पैसा या मनी या मतलब इट वॉज नॉट ए प्रॉब्लम, बट की प्रॉब्लम वॉज ड्यू टू द बिहेवियरल प्रॉब्लम। ओके, तो ये कहते हैं कि जी जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि ये कैसे, ट्रेनिंग, सोशल कंटेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंसी, फीडबैक। मैंने कहा ना, द मोस्ट सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी कारपोरेशन है जिसकी एम्प्लॉय सेटिस्फाई है? मैंने जिस तरह लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था, फेसबुक, फेसबुक के एम्प्लॉयज मोर सेटिस्फाई, और डेफिनेटली वो गूगल, सेटिस्फेक्शन का क्राइटेरिया, हाँ, गूगल भी है सर। गूगल डेफिनेटली, मैं नहीं कह रहा कि गूगल नहीं है, लेकिन मैंने जो इंटरनेशनल रैंकिंग बता रहा हूँ, मोस्ट सेटिस्फाइड, सबसे ज्यादा फेसबुक, फिर गूगल, फिर एओएल या जो भी है इस तरह। अच्छा, ये पर्सनालिटी कैन इन्फ्लुएंस जॉब सेटिस्फैक्शन, you know this is important. Negative people are usually not satisfied with their jobs. एक चीज है नेगेटिव लीडरशिप, एक चीज है डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी। ये आगे चल के हम ये मैट्रिक्स थोड़ा सा मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगा। एक एक होते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स, अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये दुनिया के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं आजकल के मॉडर्न रिसर्चर्स और बिहेवियरल एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि जी आपकी पर्सनालिटी का, आपकी थिंकिंग का, आपकी बिलीफ का, आपके जैसे हम कहते हैं ना मेंटल मॉडल, माइंडसेट का आपकी पर्सनालिटी पे बड़ा इफेक्ट होगा। जो बंदा साजिशी होगा, जो स्कूल की मुझे एक नज़म याद आ गई कि करो ना नहीं, करो तुम करो तुम न हासिद की बातों पे गौर, जले जो कोई उसको जलने दो। और कुरान और हदीस से साबित है कि जी हासिद, देखिए नेगेटिव पीपल, जिस तरह वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये कहते हैं कि नेगेटिव पीपल, कुरान हदीस से है कि जी वो अपने आप में जलता भी है, अपने आप पे इफेक्ट भी है, मतलब ठीक है ना, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। आर यू गेटिंग मी? अच्छा, तो ये कहते हैं कि नेगेटिव पीपल जो कि हमेशा काम में कीड़े, दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक, दे आर नॉट पॉजिटिव, तो वो क्या कहते हैं, दे डेफिनेटली विल नॉट, यूजुअली, डेफिनेटली नहीं, यूजुअली नॉट सेटिस्फाइड। Those with positive core self evaluation are more satisfied with their jobs. In other words, basic computer, देखिए जी, जो लोग पॉजिटिव कोर सेल्फ एवेल्युएशन अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने सेल्फ की, जी मुझ में क्या खामी है, अगर मैं मेरी प्रमोशन नहीं हो रही तो डेफिनेटली मुझ में कोई इशू होगा, मैं आई विल इंप्रूव इट, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर या इन कमिंग परफॉर्मेंस असेसमेंट आई विल गेट गुड ग्रेड्स। अब ये पॉजिटिविटी क्या करती है? दिस लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन। अब देखिए, एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सेज टू डिससेटिस्फाई, एक बंदा डिससेटिस्फाई होगा और डिससेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये आप देख लें, ये मैट्रिक्स एक्टिव डिस्ट्रक्टिव, एक्टिव डिस्ट्रक्टिव, वो क्या है? इस तरह के लोग एग्जिट कर लेते हैं, इनका बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्टिव तो होते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग के साथ। मेरी बात क्या, लीव द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर वेरी एक्टिव, लेकिन वो उस तरीके के एक्टिव के दे आर एक्टिव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, क्विक लीव कर लेते हैं। एक्टिव कंस्ट्रक्टिव, आप देखिए एक्टिव भी है कंस्ट्रक्टिव भी है, ये एक किस्म की पॉजिटिव। एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव कंडीशंस, वो अपनी कंडीशंस को इंप्रूव करना। अब देखिए शाह हसन, लेट सपोज मैं से कहता हूं एक्टिव कंस्ट्रक्टिव, आप में से काफी लोग होंगे, शायद सारे हों एक्टिव कंस्ट्रक्टिव। आप चाहेंगे कि हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, हम पीएचडी करेंगे, हम मेहनत करेंगे, रिसर्च पेपर्स करेंगे, रिसर्च करेंगे, सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट डालेंगे, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करेंगे, दुनिया हमें मानेगी। हाँ, तो अब ये क्या है? आप यू आर एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव एंड पैसिव, नेग्लेक्ट, अलाउंग कंडीशंस टू वर्सन, ये लोग वो ऑर्गेनाइजेशंस को दिक्कत लगाने के बजाय ऑर्गेनाइजेशंस के टायर पंक्चर करते हैं, उनको पुश करते हैं, खींचते हैं, और जो लोग काम करते हैं उनको भी डिस्करेज करते हैं। और ये एक डिस्करेजिंग किस्म की पर्सनालिटी होती है, इसे मैं कहूँगा स्टिंगिंग पर्सनालिटी, या मतलब ये एक नाकाम किस्म के और पैसिव लोग होते हैं, काम भी नहीं करते और नाकाम भी होते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। और तीसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देख लें, कंस्ट्रक्टिव पैसिव,
काम भी करते हैं लेकिन स्लोली, दे आर वेटिंग फॉर कंडीशंस टू इम्प्रूव। वो कहते हैं कि जी खुद ब खुद सब चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी। शासन आपको अच्छा, ओके, आउटकम ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, और ये आखिरी आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। याद रखिए दो चीजें, काजेज एंड इफेक्ट। अच्छा, अब मैं कहता हूं आउटकम, जॉब सेटिस्फैक्शन का आउटकम क्या होगा? जॉब परफॉर्मेंस। आउटकम क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। आउटकम क्या होगा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आउटकम क्या होगा जॉब सेटिस्फैक्शन का? एब्सेंटीज्म। इन केस ऑफ नो जॉब सेटिस्फैक्शन, तो एब्सेंटीज्म। जॉब परफॉर्मेंस, satisfied workers are more productive, and more productive workers are more satisfied. Are you getting me? Organizational citizenship behavior. Satisfaction leads to influences OCB through perceptions of fairness. The more you think that there is a fairness in organizations, तो क्या होगा? आप organizational citizenship behavior develop कर लो. Okay. Customer satisfaction. Satisfied frontline employees increase customer satisfaction, loyalty. MS PhD के enrollment हमारी कुर्तबा यूनिवर्सिटी में क्यों ज्यादा है as compared to other universities in public and private both? इसलिए कि यहाँ पे employees, teachers, coordinators, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जान मारती है आप लोगों को सर्व करने के लिए, आप लोगों की खिदमत में, आप लोगों का टाइम जाया ना हो, आप लोग कुछ सीख के जाओ। तो ये अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप सेटिस्फाई होते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आप ये देखिए ये क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ड्यू टू आवर कमिटमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। एब्सेंटीज्म. Absenteeism, satisfied employees are moderately less likely to miss work. आप देख रहे हैं ना कि the more employees are uh, not satisfied, या dissatisfied, so they will leave the organization. Absenteeism phenomena will be increased in those organizations where there is lack of job satisfaction. Managers often don't get it. क्या managers often don't get it? Despite the overwhelming evidence of the impact of job satisfaction on the bottom line, most managers are either unconcerned about or overestimate work satisfaction. Job satisfaction मुझे और आपको एक आम सी चीज लगती होगी, हम इसको केयरलेस लेते हैं, हम मतलब majority of the managers, they think that it is not that much important, लेकिन in fact it is very much important because it leads to job performance, OCB, customer satisfaction, absenteeism, and so many others. Thank you very much. If you have any sort of questions, so I unmute your mics. आवाज मेरी सबको आ रही है? Okay. If anyone want to ask some questions, the forum is open. Yes, Assalamualaikum, sir. sir. जी जी, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये OCB पर काइंडली मुझे तो समझाए कि ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर है क्या चीज सर? Okay, ये थोड़ा सा नहीं समझा गुड। सर। देखिए जी, organizational citizenship behavior, it is basically अगर हम थोड़ा सा डीप चले जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट लाइक, आप कह सकते हो एक एंटिटी है, इसका एक अपना कल्चर है, जिस तरह मैंने कहा ना, मटेरियल इमटेरियल कल्चर्स, और वहाँ पे बॉसेस का आपके साथ रिलेशनशिप, आपके एम्प्लॉयज का, और वहाँ पे आपको फैसिलिटीज और एक ओवरऑल एक सपोर्टिव कल्चर या जैसा भी कल्चर है। अब ये जितना सपोर्टिव होगा, जितना कंजीनियल होगा, जितना ये वर्केबल होगा, जितना ये आपके साथ मैच करेगा, आपको एडजस्ट करेगा, फेयरनेस उसमें होगी, हाँ, वेलबींग का ज्यादा ख्याल रखेगा, तो आप इसके एक मेंबर के तौर पे, एक एज अ सिटीजन, यू विल स्पेंड योर टाइम इन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिटीजन। आप उसके वैल्यूज का ख्याल, आप उसके साथ मतलब ये है कि एक कमिटमेंट का ख्याल, आप उसके साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशंस के वेलबींग का ख्याल, डूज एंड डोंट्स का ख्याल, उसकी प्रमोशन का सोच। तो अब ये क्या है? दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर व्हेन एन एम्प्लॉय कंसीडर हिज सेल्फ or herself as a part of the organization, as a citizen of the
पार्ट ऑफ से ज्यादा मैं कहूंगा सिटीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सिटीजन वही होता है जो कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मानता है. आर यू एग्री विद दिस? तो बिल्कुल सही. हाँ, और ये कैसे बढ़ेगा ये ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ. द मोर जॉब सेटिस्फैक्शन द मोर ओसीबी विल बी एनहांस्ड. आर यू गेटिंग मी? थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके, बिल्कुल ठीक है. अच्छा जी, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? साहबजादा यासीन. अस्सलाम वालेकुम सर. हाँ, मोहम्मद अयाज. ओके जी जी. सर कैसे आप? ठीक ठाक जी. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू. थैंक यू सर. सर आपने स्टार्ट में ये कहा था कि एटीट्यूड जो है ये माइंड स्टेट है या बिलीफ हम उसको कह सकते हैं ना. जी जी. तो सर इसको हम लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ लिंक कर सकते हैं? गुड. देखिए, लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ मैं एक चीज थोड़ा सा आपको फर्दर और भी जरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात कर लूं. अगर आपके देखिए ये माइंड जो है इसको हम, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, गहरी बात मैं ऐसे कहूंगा. आपका माइंड जो है, ये एक टाइम था हम ये सुनते आ रहे थे कि जी ये रिसर्च हो रही है, आगे भी होगी, फर्दर भी, कि हमने अभी तक अपने माइंड के 100 में से 10 है कि 10 में से एक हिस्सा यूटिलाइज किया या वो भी शायद नहीं किया, और बाकी 9 जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको हमने यूटिलाइज ही नहीं किया. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ पावरफुल इज आवर माइंड. नंबर 1 इसमें आपका, अच्छा आपके, अब मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ अगर फर्दर और भी करीब आ जाऊं तो यस एग्री, आपका माइंड जो है आपकी बिलीफ से, आपकी थिंकिंग से, आप पहले एक कहते हैं ना कि आई एम ऑफ द नोशन, आप एक नोशन जब डेवलप करते हो, और ये होता बाद औकात द स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, या बाद औकात बड़ा मुश्किल से हो जाता है, बाद औकात कन्विंसिंग ज्यादा चाहता है, बाद औकात आपकी एक्सपीरियंसेस एक्सपोजर चाहता है, उसके बाद ही एक्सटर्नल फैक्टर्स और ये तमाम चीजें इफेक्ट करके आपका क्या करता है, आपका एक माइंड सेट. इसे प्रोफेसर अनाबेल, डॉक्टर अनाबेल बेरल की किताब है लीडरशिप एंड चेंज, उसका मैं रेफरेंस आपको दूंगा. वो कहती है कि जी हम में से हर एक का एक अपना होता है मेंटल मॉडल, और ये मेंटल मॉडल आपके माइंडसेट से रिलेटेड. ये मेंटल मॉडल with the passage of time we should change. Why we should change? Because the situation is changed, the ground realities are changed, or in fact the signals of change जो है उनकी वजह से हमारे mental models change होने चाहिए. तो you can correlate it, you can relate this with locus of control. थैंक यू सर. Okay. Anyway, good question. अच्छे question. हकीकत है, the more you ask, the more you will be clear, the more we will trigger a discussion. और ये इसी तरह आपकी एक practice हो जाएगी, honestly, because you are PhD scholars, और इस level पे the more we इसे कहते हैं intellectual regurgitation. अच्छा जी, आगे anyone? माइक सबके? अच्छा, मेरी आवाज सारे सुन रहे हैं? Everyone is listening to me? Yes, sir. Or everyone can discuss their point of view and ask questions, huh? माइक सबके ऑन है ना? शासन, everyone? Sir, in the lecture you have discussed about the On employee सबके? engagement. Hello, So we can also involve or employ Unmute. through job. ये क्या हुआ? हेलो Hello, sir. जी जी जी. अच्छा, मतलब ये कि माइक सबके ऑन है, ठीक है? एवरीवन कैन हाँ आस्क. बिल्कुल. ओके, Voice clear है. ओके ओके ओके. Sir, employee engagement second, of एक job second. enlarge. जस्ट अ जी, सेकंड प्लीज. सादात यासीन, वॉइस क्लियर तो ठीक है, एग्री, लेकिन मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूँ तमाम पार्टिसिपेंट से कि सबके माइक मेरी तरफ से यहाँ से ऑन मैंने किए, तो सबको मतलब दे कैन आस्क. हाँ, ठीक है ना? Okay, sir. सर ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट तो हम जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं ना सर. हाँ, कि हम जब हम अपने एम्प्लॉय को हमने एंगेज कर रहा हो या इन्वॉल्व कर रहा हो तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हम उसमें भी यूज कर सकते हैं, either giving them additional charge through enrichment or बिल्कुल through बिल्कुल, enlargement. ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई नो डाउट. और वो फिर हम देखते हैं. देखिए एक चीज है,
अच्छा क्वेश्चन आपने कहा, ये डिपेंड करता है। जब आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या आजकल भी मतलब आप जैसे आप स्टूडेंट्स हैं आजकल पीएचडी के, कल को आप ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे लेवल पे फर्दर पॉलिसी मेकिंग पे चले जाएंगे, और इसी तरह मतलब ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ही ये ट्रेंड है कि वहां पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो सिस्टम है, अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल मैकेनिज्म, ये पेम्स का जो सिस्टम है, अब इसके मुताबिक आप देखिए ना, यहाँ पे टाइम टू टाइम, चाहे वो 360 डिग्री इवैल्यूएशन है और ये क्वार्टरली है या बाय एनुअली है या ईयरली, उसमें पता चल जाता है कि इस एम्प्लॉयज की पर्सनालिटी, इसकी लाइकनेस, ये किस चीज से इन्वॉल्व होगा, ये सेटिस्फाई किस चीज से होगा, इसकी आया मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दूं, या चैलेंजिंग काम करना चाहता है, या रिपीटेटिव काम पे ये एक्सपर्ट है, या मतलब ये कि मोर अपना डोमेन बढ़ाना चाहता है, तो डेफिनेटली इससे भी काफी इफेक्ट इसका हो सकता है। टाइम घंटा पूरा हो गया। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके डियर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।